Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we are going to start a new chapter, unit number 4, factorization and algebraic manipulation. So repeat after me. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. So students, what actually a factorization is meant by? So in maths, we say when we have a number and we want to break down that number into a smaller number, that multiply together give you that original number. So what actually it means, see an example, like I am defining a term factorization over here. If you have a number like 15 and now you want to break this number into smaller numbers, okay, और आप इसको ऐसे टू स्मॉलर नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि जिसको अगर मल्टीप्लाई करें देन यू अगेन get back the original number. Okay, so if I multiply 3 times 5, so 15 को मैं 3 into 5 में break कर सकती हूँ, but if I again multiply these two numbers I get the original which is 15, right? Similarly if you have a number like 12, अब आपने इसको break करना है into smaller parts और आपने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो स्मॉलर पार्ट्स हैं अगर आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं देन यू गेट द ओरिजिनल नंबर बैक. ओके, सो इफ आई राइट 3 times 4 over here, so 3 times 4 is, if I multiply these two numbers then we get back 12 again. Okay, so this actually a factorization. This is how you can define a factorization or algebraic expression. So it means you have an expressions like equations or expression like which includes the variables, like for example 7x. Now you want to break 7x. Okay, so this is what you are going to explore in this chapter. There are different methods how you can break down or you can factorize the algebraic expressions. So this is how we can explore by in different exercise. Okay, so see, today we are going to start exercise 4.1, in which the question number 1 says factorize by identifying the common factors. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास algebraic expression given है और आपने इसको factorize करना है just by taking a common factor. Okay, आपने इनमें से सिर्फ common factor वो आपने identify करना है and that's it. So let me tell you how you can solve question number 1 of exercise 4.1. See the part 1, which is 6x plus 2, right? तो if you see, आपके पास यहाँ पे first term is 6x and the second term is 12, right? And if you see, the 6 is common in both, so just take away the common 6. Now see, the first term में आपने जो 6 है इसको आपने common ले लिया, so just you are left with x and then positive sign, and if I divide 12 by 6 then I get 2. So this is your final answer. See how easy it is. Just you just need to take a common factors from each term. Okay, now let's see how we can solve the rest of the parts. 15y square plus 20y. So first of all, see if there is a variable common. Yeah, there is actually. So आपके पास first term में there are 2y's और second term में आपके पास just a single y. तो जो आपके पास smallest value होती है आप उसको common लेते हो. तो आपके पास जो smallest power है यहाँ पे y की वो 1 है. So just take 1y common. Now see, आपके पास 15 और 20 में से क्या common आ रहा है? 5. Yes. So 5 is a factor of 15 and 20 both, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है. So you'll take a common factor 5y in these both two terms and you are left with, फर्स्ट टर्म में से आपने जब 15 में से 5 को कॉमन लिया तो आप इसको डिवाइड करोगे 15 डिवाइड बाय 5. तो इसका मतलब ऑल्टरनेटली यू कैन ऑल्सो इमेजिन लाइक दिस कि 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आते हैं? 3 पे. सो यू आर लेफ्ट विथ 3 ओवर हियर और आपने यहाँ से एक y कॉमन ले लिया था, सो जस्ट 1y लेफ्ट एंड पॉजिटिव साइन एज इट इज. अब 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आते हैं? 4 पे, और आपने ये एक y था वो आपने कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे कोई भी y नहीं लाएगा. सो जस्ट दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 2. ओके, नाउ सी पार्ट 3, which is minus 12x square minus 3x. And see here we have a negative sign with both terms, so we'll take a negative common over here. Now if we talk about the variable, so there are 2x and there is a single x, so we'll take a single x common. अब आप 3 और 12 में देखो कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी आता है और 12 भी आता हो, तो दैट इज 3, राइट? सो विल टेक 3s कॉमन. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओवर हेयर, नेगेटिव साइन को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास जो ब्रैकेट में आप लिखेंगे जब, तो आपके पास जो साइन होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, एंड अगर आप देखेंगे 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है तो इट्स 4 एंड यू आर लेफ्ट विद 1x ओनली बिकॉज एक x आपके पास कॉमन चला गया, एंड दिस नेगेटिव साइन विल चेंज इनटू अ पॉजिटिव 1 बिकॉज यू आर टेकिंग अ नेगेटिव साइन कॉमन ओवर है. और अगर आप 3 को 3 से देखेंगे, 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, सो इट्स 1 एंड दैट्स इट. और यहाँ पे जो x एक ही था और वही आपने कॉमन ले लिया. ओके, so that's how you're going to solve question number 1 of this exercise. So try the next part with me, which is 4a square b plus 8ab square, right? So
क्या होगा फर्स्ट स्टेप इसका? सबसे पहले तो देखेंगे 4 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है। या इट इज 4, राइट? 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, बट वी विल टेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ओके, नाउ सी कि यहाँ पे इस टर्म में आपके पास ए कितने हैं? देयर आर 2 एज, राइट? और इसमें आपके पास जस्ट 1 ए है, तो विल टेक जस्ट 1 ए एज कॉमन। और बी आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो बी भी हम एक कॉमन ले लेंगे, राइट? नाउ सी, आपने यहाँ से फर्स्ट टर्म में से आपने 4 भी कॉमन लिया और एक ए कॉमन ले लिया, तो इट मीन्स जस्ट यू आर लेफ्ट विद 1 ए और बी भी कॉमन आ गया। एंड पॉजिटिव साइन विल रिमेन एज इट इज। 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 पे। ए आपने कॉमन ले लिया और बी यहाँ पे 2 है, ठीक है? देयर आर 2 बीज ओवर हियर, सो आपने यू हैव ऑलरेडी टेकन अ 1 कॉमन, so you are left with only one b, single b, right? Now solve part 5 of this question, which is xy minus 3x square plus 2x. ओके, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म में भी आपके पास x है, सेकेंड टर्म में आपके पास 2x है और थर्ड टर्म में भी आपके पास सिंगल x है, तो इट मीन्स कि सिंगल x तो सब में है, तो विल टेक एन x कॉमन ओवर है, सिंगल x कॉमन। और अगर हम बात करें कि कोई कोफिशिएंट वगैरह किसी वेरिएबल के साथ, देयर इज अ 1 ओवर है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, और ये किसी भी सेम टेबल पे नहीं आते, सो वी कैन नॉट टेक, और y भी नहीं ले सकते, सो जस्ट x विल बी आर कॉमन इन दिस पार्ट। तो अब देखिए आप कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें से आपने x को कॉमन ले लिया एंड यू आर लेफ्ट विद y ओनली, माइनस यहाँ पे आपके पास 2x थे और आपने एक x कॉमन ले लिया है, तो ओनली 1x लेफ्ट एंड विद 3 एंड प्लस 2 लेफ्ट ओवर है। इजी। नाउ सी पार्ट 6। पार्ट 6 आपके पास है 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। ओके, आपके पास जो a है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स वी कैन टेक 1 एज कॉमन। b आपके पास सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और लीस्ट पावर क्या है? वो मतलब b की 1 है, तो हम लोग सिर्फ एक भी ही कॉमन ले सकते हैं। और अब आपके पास हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 15 है, और 3 9 15 सेम टेबल पे आते हैं 3 के टेबल पे, राइट? Okay, now see what we are left with. In the first term we have taken 3 and b and 1 a common, so we are left with only a single a. और अगर मैं देखूं कि 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, so it's 3, और यहाँ पे a हमने कॉमन ले लिया और b हमने एक ही कॉमन लिया था, so we left with a single b over here also, प्लस 15, 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? It's 3 5 are 15, so 5 और a भी हमने कॉमन ले लिया। So this is the final answer of part 6 of question number 1. Okay, see how easy it is. आपने just identify करना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, और उसको आपने बाहर लिखना है और ब्रैकेट में आपने वो एक्सप्रेशन लिखना है जो कि आपके पास विच इज लेफ्ट। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is about factorize and represent the pictorially. The first question is 5x plus 15. ठीक है, if you notice, so it will solve just like we have done question number 1. Okay, so question number 1 part 1 में क्या है? 5x plus 15, तो x तो सिर्फ इसके साथ है, इसमें x नहीं है, राइट? सो वी कैन नॉट टेक x एज कॉमन, बट 5 और 15 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यस, 5, क्योंकि 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में डिवाइड होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द 5 कॉमन हियर, एंड इन दिस एक्सप्रेशन वी आर लेफ्ट विद x ओनली, एंड प्लस 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3, so that's it. This is how you can do this question. Okay, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, नाउ द सेकेंड मेथड टू फैक्टराइज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज बाय ब्रेकिंग डाउन द मिडल टर्म्स। ओके, आपने जो मिडल टर्म होगी आपके पास जो भी एक्सप्रेशन की, लाइक मिडल टर्म यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव 4x है, तो आपने इसको ब्रेक करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना स्टार्टिंग में, लाइक 15 को आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, ठीक है? और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो देन यू गेट द ओरिजिनल नंबर बैक अगेन, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे जो मिडिल टर्म है आपके पास 4x है, आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी पार्ट 3, यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म 6x है, पार्ट 4 में आपके पास मिडिल टर्म 4x है, तो आपने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कोई भी फैक्टर मतलब एक कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। उसके लिए आपके पास नेक्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ मैं, विच इज ब्रेकिंग डाउन द मिडिल टर्म। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पे x है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में है, बट थर्ड टर्म में नहीं है, सो वी कैन नॉट टेक एन x इज कॉमन, और आपके पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट वी नीड टू सॉल्व इट, सो विल यूज जो अभी मैंने आपको मेथड बताया है कि हम लोग जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है? तो उसका आपके पास क्या क्राइटेरिया है, इसको अपनी गौर से सुनना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन फैक्टराइजेशन। ओके, सो सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है। इफ देयर इज नथिंग सो कंसीडर इट एज 1, और आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? आपने जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना। ओके, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आपने कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आएगा, अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं देन यू गेट 3, राइट? ओके, अब आपने ये जो 3 है इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, और आपने इसके फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि अगर आप उसको
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 आएगा, बट अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करेंगे तो आपके पास मिडिल टर्म आएगी. ओके, आई नो इट्स कंफ्यूजिंग बट बिलीव मी इट्स वेरी इजी इफ यू विल प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर. सो लेट मी रिपीट इट अगेन. सबसे द फर्स्ट स्टेप इज कि आपने यहाँ पे जो आपकी लास्ट टर्म होगी उसको आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, देन आपके पास जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा सबसे पहले आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. ओनली 3 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है बस, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता ना. अब आप देखें कि ये जो आपके पास फैक्टर आया है 3 और 1. ठीक है, आपके पास आया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट. एक आपके पास फैक्टर आया 3 और दूसरा आया 1. अब आपने ये देखना है कि मिडिल टर्म आपके पास है +4. ठीक है, +4x. तो अब आपने ये जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं 3 एंड 1, इसको आप प्लस या माइनस करके देखें कि आपके पास 4 आएगा. अगर मैं इसको माइनस करूं देन यू गेट 2, राइट. तो इट मीन्स कि माइनस इज नॉट अ suitable ऑपरेशन ओवर हियर, बट इफ आई ऐड दीज टू फैक्टर्स तो वी गेट 4, राइट. सो इट मीन्स कि हमने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करना होगा. तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको आपने एज इट इज लिखना है. हमने बेसिकली मिडिल टर्म को ब्रेक करना था और इसको मिडिल टर्म को हमने इसी तरीके से ब्रेक करना है. ठीक है, ये जो फैक्टर्स होंगे ना और इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास जो मिडिल टर्म बन रही होगी, हम यही हमारे पास इसके फैक्टर्स होंगे. तो अभी हमने 3 और 1 फैक्टर लिया है और इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 4 आ रहा है. सो विल राइट 3 + 1. और अब आपके पास यहाँ पे x वेरिएबल है, सो यहाँ पे हम x वेरिएबल इसके साथ मेंशन कर देंगे. इजी. ओके, नाउ सी देयर आर 4 टर्म्स नाउ, 1 2 3 4. अब आप इसके पेयर्स बना लो. ठीक है, इसको इन दोनों की पेयर्स बना लो, इन दोनों की पेयर्स बना लो. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, सो जस्ट टेक अवे x एज अ कॉमन और यू आर लेफ्ट विद x + 3 ओवर हियर. और यहाँ पे आपके पास ओनली +1 कॉमन आ रहा है एंड यू आर लेफ्ट विद x + 3. अब इस स्टेप पे आके आपने ये देखना है कि आपकी ये जो ब्रैकेट में टर्म है इट मस्ट बी सेम. ओके, अगर यहाँ पे ये सेम नहीं आती तो इट मीन्स कि आपके जो फैक्टर्स हैं दैट इज इनकरेक्ट, कि आपने कोई मिस्टेक की है. ओके, सो ये जो आपके पास फैक्टर्स, ये जो ब्रैकेट में आपके पास टर्म आ रही है इसको सेम होना जरूरी है. ना अभी जो ब्रैकेट में आपके पास टर्म आ रही है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, सो जस्ट टेक इट एज अ सिंगल. और जो आपके पास बाहर आपने कॉमन लिए हुए थे उनको भी आपने एक दफा ब्रैकेट में लिख देना है. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गोना सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन. Let's see part 3. Part 3 of question number 2 is about x square plus 6x plus 8. डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज, बस उसके स्टेप्स को माइंड में रखो और सॉल्व करना स्टार्ट करें. ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किया है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने क्या करना है इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, राइट. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमारे पास 8 आता है. अब हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 हो सकता है. ठीक है, दैट्स इट, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं. अब हमने एक ऐसे फैक्टर ऑफ पेयर, एक तो ये पेयर बन गया हमारे पास एक ही. अब हमने ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर चूज करना है कि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म में क्या है 6, तो हमारे पास +6 आ जाए. तो अगर मैं 2 और 4 को माइनस करती हूँ आई गेट 2, तो इट मीन्स, और अगर मैं 2 और 4 को प्लस करती हूँ तो आई गेट 6. 2 and 4, so we'll get 6, right. और 8 और 1 को अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 नहीं आ रहा. सो इट मीन्स वी आर पिकिंग दिस पेयर ऑफ अ फैक्टर विच इज 2 and 4. और 2 और 4 को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो तभी हमारे पास 6 आता है, राइट. तो +2 + 4 करें तो तभी 6 आता है. तो इट मीन्स विल राइट इट लाइक दिस. जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है इट विल रिमेन एज इट इज, और हम लोगों ने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और हमने फैक्टर चूज कर लिया है. इट वुड बी +2 and +4. और आपके पास वेरिएबल 6 है तो इन दोनों के साथ, सॉरी x है तो आपके पास इन दोनों के साथ x वेरिएबल आ जाएगा, राइट. अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इनके पेयर्स बना लेने. फर्स्ट पेयर में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इट्स x एंड यू आर लेफ्ट विद x + 2. और सेकंड पेयर में आपके पास कॉमन आ रहा है +4 एंड यू आर लेफ्ट विद x + 8 के टेबल में 4 कहाँ, 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है 2 पे, राइट. नाउ अब आपने देखना है कि आपके जो दोनों ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सेम है. यस इट इज सेम, सो इट मीन्स वी आर डूइंग गुड. सो x + 2 इसको हम एक दफा लिखेंगे और जो हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करके एक दफा लिख देंगे. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज x² + 4x + 4. ओके, रिपीट द स्टेप्स विद मी. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखने एक्स 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 के साथ क्या कोफिशिएंट है, इट्स 1, तो इस 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है एंड वी गेट 4. अब आपने ये देखना है कि फिर आपने इस 4 के फैक्टर्स बनाने हैं. अब इस 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पहला फैक्टर हो सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स इट, राइट. अब आपने ये देखना है कि हम कौन सा प्योर फैक्टर को चूज करें. ठीक है, हमारे पास 2 प्योर फैक्टर आ गए, किसको चूज करें कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास +4 है. तो 4 और 1 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं सो हमारे पास +4 नहीं आता आंसर. बट इफ आई ऐड दीज this factor 2 + 2, then we get 4, right. So we'll pick this factor and the criteria to write it like this, x² + 4 will remain as it is. और हमने +4x को ब्रेक करना है इसमें, so we'll write +2 + 2. और यहाँ पे x वेरिएबल है तो इनके साथ आपके पास x एज अ वेरिएबल आ जाएगा.
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इसके पेयर्स बना लेने हैं, और फर्स्ट पेयर में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है x, एंड यू आर लेफ्ट विद x प्लस टू, और सेकंड पेयर में आपके पास पॉजिटिव 2 कॉमन आ रहा है, यू आर लेफ्ट विद x प्लस टू। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो जो ब्रैकेट में टर्म्स है इट दे आर सेम और नॉट। सो ये दे आर सेम, सो इट मीन्स वी आर डूइंग ग्रेट। सो अब आपने क्या करना है, इनको आपने वन टाइम लिख देना है, और जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स है उसको आपने एक दफा लिख देना है x प्लस टू। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस x प्लस टू का होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज आपके पास जो x प्लस टू है वो 2 टाइम्स आ रहा है। Now let's see question number 3. It's also about to factorize your algebraic expressions. और जो अभी हमने method किया question number 3 and 4 is all about it. तो अब आपके पास you have more question to practice this method. Okay, so let's do it. The part 1 is x square plus x minus 12, right? ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के आपके पास क्या है कोफिशिएंट, इट्स 1, और आपने क्या करना है 1 और -12 को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप यही होता है ना आपके पास। सो इसको हम रफ वर्क में करेंगे। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -12 विल गेट -12। अब हमने -12 के फैक्टर्स बनाए, तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -12 होगा। सेकंड फैक्टर क्या होगा, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन को थोड़ा सा स्किप करते हैं, बस फैक्टर बनाते हैं। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 12, 2 का सेकंड फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 6, राइट, एंड व्हाट कुड एल्स, 3 इंटू 4। तो यही आपके पास फैक्टर बने। देयर आर थ्री पेयर्स, फैक्टर पेयर्स ऑफ 12। द फर्स्ट वन इज 1 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6 एंड 3 टाइम्स 4, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने कौन सा फैक्टर पिक करना है सो दैट इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द फैक्टर्स तो वी गेट पॉजिटिव 1। आपके पास मिडिल टर्म है पॉजिटिव x, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास 1 है, राइट। तो अगर मैं 12 और 1 को प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास पॉजिटिव 1 नहीं आता, तो इट मीन्स विल रिजेक्ट दिस फैक्टर। और अगर मैं 2 को और 6 को प्लस करूँ सो 8 आता है, और अगर माइनस करूँ तो 4 आता है, तो इट मीन्स इट विल ऑल्सो रिजेक्ट दिस वन, दिस पेयर। बट अगर मैं 3 और 4 को प्लस करूँ तो 7 आता है, बट अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि मैं जो माइनस का साइन है वो -3 के साथ आएगा या 4 के साथ आएगा, ठीक है। तो उसका आपने ये क्राइटेरिया है कि आपने ये देखना है कि आपके यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो इट मीन्स, और फिर आपने पिक करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है, सॉरी ग्रेटर वैल्यू क्या है विच इज 4, तो आपने इसके साथ पॉजिटिव साइन मेंशन करेंगे, एंड द सेकंड वन के साथ क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। सो इट मीन्स अगर हम -3 + 4 करते हैं तो हमारे पास आंसर +1 आता है, ठीक है। तो विल राइट इट लाइक दिस एक्स स्क्वायर एंड -12 will एज इट इज, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करें, एंड विल राइट इट लाइक दिस -3 एंड +4, राइट। और यहाँ पे x एज अ वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग x मेंशन करेंगे। ओके, नाउ आपने इसके ऐसे पेयर्स बना लेने हैं। अब आप देखें कि आपके फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, इट्स x, एंड यू आर लेफ्ट विद x -3, और सेकंड पेयर में से +4 कॉमन आ रहा है, एंड यू आर लेफ्ट विद x -3। बोथ टर्म्स आर सेम, सो इट मीन्स वी हैव डन करेक्टली। हम लोगों ने फैक्टर्स इसके फाइंड कर लिए हैं, सो जस्ट राइट इट वन टाइम, और फिर इसके बाद आप इस फैक्टर को कंबाइन कर दें, x +4 जो कॉमन आए थे, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ let's see how we can solve the rest of the part of this question. I want you to solve practice part 2, part 3, and part 4, and part 6. Also 8, okay? So I want you to practice these questions. और अगर नहीं हुए so no problem. You can ask me. So I'll definitely help you out. So for now, let's try to solve these two parts. Okay? Methods same है सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ सी पार्ट 5 में आपके पास क्या है, विच इज x स्क्वायर -10x -24। अब आप स्टेप्स रिपीट करें मेरे साथ, ठीक है। तो आपके पास पहला स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, और यहाँ पे आपके पास 24 है, राइट। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 24 देन यू गेट 24, राइट। अब 24 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। पहला फैक्टर क्या होगा, 124 ही होगा, 1 टाइम्स 24। सेकंड फैक्टर क्या होगा, 2 टाइम्स 12, राइट। फिर क्या होगा, 3 टाइम्स 8, देन 4 टाइम्स 6, ओके। और क्या हो सकता है इसका फैक्टर, और 1 टाइम्स 24। तो आपके पास ये 24 के फैक्टर्स आ गए कि अगर हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट 24, 3 8 24, 4 टाइम्स 6 इज आल्सो 24, एंड 1 टाइम्स 24 इज 24। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हिच वन वी शुड पिक। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास मिडिल टर्म क्या है, इट्स -10। अगर हम 12 और 2 को प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास -10 आता है, यस वी गेट। तो अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 10 आ जाता है, तो इट मीन्स कि मुझे आगे सारे फैक्टर्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट वन फैक्टर वी कैन पिक इट ओवर हियर। तो अब आपने ये देखना है कि साइन किसके साथ
आएगा। तो अब आप ये देखिए कि नेगेटिव साइन है आपके पास, और नेगेटिव साइन आपके पास मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन है, तो इट मींस इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आपके पास यहाँ पे आएगा एंड 2 के साथ पॉजिटिव आएगा। और नाउ अगर हम +2 -12 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -10, राइट। तो राइट इट, विल राइट इट लाइक दिस, x स्क्वायर और ये -24 विल रिमेन एज इट इज, और ये जो मिडिल टर्म है इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, +2 एंड -12 में, और वेरिएबल x है तो इट मींस यहाँ पे दोनों के साथ x एज अ वेरिएबल आएगा, राइट। अब हमने क्या करना है कि कॉमन लेने हैं, पहले इनके पेयर्स बना लेने हैं और फिर कॉमन लेना है। आपने ये स्क्वायर और सर्कल नहीं करना है, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपने नहीं इसको ड्रॉ करना। ओके, अब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे एंड यू आर लेफ्ट विद x+2, और यहाँ से आपके पास माइनस दोनों के साथ है तो आप माइनस भी कॉमन लेंगे और आप 12 भी कॉमन लेंगे, राइट। एंड here you are left with x, आपने माइनस नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लिया था, so that's why this sign will change, so it will become positive, और 24 12 के टेबल में 2 पे आता है। now see the values in the in your bracket is same, so we'll write it one time x+2, और जो आपके पास बाहर कॉमन आई हुई है उनको भी आप कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। दिस इज योर आंसर। now see part 7. Part 7 is about y square plus 13y plus 36. Okay, so the first step is we need to multiply 1 by 36, right? So 1 times 36 is 36. अब 36 के फैक्टर्स बनाएं तो पहला फैक्टर तो होगा 1 times 36, then the second factor is 2 times 18, and the third factor is 3 times 12, 4 times 9. Okay, अब आप यहाँ पे देखिए जो हमने फैक्टर्स अभी यहाँ पे हमने इसकी फिगर आउट की हैं, उसमें से हमारे पास +13 कहीं पे आ रहा है, कोई ऐसा फैक्टर है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और हमारे पास +13 आंसर आ जाए ऐसा। सो लेट्स सी, अगर हम 36 और 1 को प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 13 आंसर नहीं आता। 18 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं 20 आता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 आता है, तो इट मीन दिस इज नॉट अ राइट पेयर। और 3 और 12 को भी अगर हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास नहीं आता। बट अगर मैं 4 और 9 को प्लस करती हूँ, 4 + 9 आपके पास क्या होता है, 13 होता है, राइट। और पॉजिटिव साइन ग्रेटर टर्म के साथ आएगा और 4 के साथ भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज वी नीड टू ऐड दीज टू बोथ। ओके, तो आप कैसे, इसका फैक्टर आपके पास क्या आया, 4 + 9, सो विल राइट इट लाइक दिस, y स्क्वायर प्लस 4 + 9 + 36, और अब आपके पास वेरिएबल y है, तो इन दोनों के साथ वेरिएबल आपके पास y आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y, एंड यू आर लेफ्ट विद y+4, और यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है 9, सॉरी 4, सो यू आर लेफ्ट विद, सॉरी, सो here 9 is common, right, क्योंकि 9 and 36 both आपके पास 9 के टेबल में आते हैं, so you are left with y plus 4, right? So now the both the terms are same, so we can write it in a single term, and this y and this +9 will combine also, and the factors, the final factors would be y+4 into y+9. Okay, so this is how you're going to solve these type of questions. Got it? Now see question number 4 of exercise 4.1. This is the last question of this exercise, and this is also it's also going to be solved just like we did the previous questions. Okay, let's see how we can solve the part 1 of this question, which is about 2x square plus 7x plus 3. So वही सेम स्टेप्स को रिपीट करें। आपने देखना है यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, एंड ओवर हियर 3, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टाइम्स 3 करें सो विल गेट 6, राइट। नाउ अब आपने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहला फैक्टर क्या होगा, 1 टाइम्स 6, देन 2 टाइम्स 3, व्हाट एल्स, नथिंग, राइट। अब आपने ऐसा प्योर ऑफ फैक्टर चूज करना है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए +7। तो अगर मैं 6 + 1 करूँ तो 7 आ रहा है ना, सो इट मीन्स वी आर टेकिंग 1 and 6, वी विल चूज दिस पेयर, और आपके पास साइन आएंगे +6 एंड +1, सो यू विल राइट इट लाइक दिस। जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने एज इट इज लिखना है, और जो लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज। हम लोग मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं और उसको हमने ब्रेक किया है +6 + 1 में, तो +6 + 1, और आपके पास वेरिएबल एक्स है तो इन दोनों के साथ वेरिएबल एक्स आएगा, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ना सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसमें यह है कि यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। इन प्रीवियस क्वेश्चंस आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट। बट यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज है, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में भी 2 है, पार्ट 3 में 4, 3, ओके, सो देयर आर डिफरेंट कोफिशिएंट्स, बट द स्टेप्स आर एब्सोल्युटली सेम, और आपने बस उन्हीं को फॉलो करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आपने देखना है कि इसमें से क्या कॉमन है, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है और दूसरा इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, सो यू आर लेफ्ट विद एक्स प्लस 3, और यहाँ पे जस्ट +1 is common, so x plus 3. Now see both the brackets are same, so we'll take as common and we're left with 2x plus 1. This is your answer for this part of question number 4. Okay, now let's see another question, another part of this question.
Okay, let's solve part 7, which is 4z square minus 11z plus 6. Okay, and you need to solve the rest of the parts. Okay, और अगर कोई भी problem है, you may ask. The first step is to multiply these two terms. और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं then we get 24, right? So it means हमने 24 के फैक्टर्स बनाने हैं. अब 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पहला फैक्टर क्या होगा? 1 टाइम्स 24, राइट? सेकेंड फैक्टर आपके पास क्या होगा? 2 टाइम्स 12, देन 4 टाइम्स 6, राइट? 3 टाइम्स 8. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. अब आपने ये देखना है कि आपने चूज किसको करना है कि जिसको आप अगर प्लस माइनस करती हैं देन यू गेट -11, राइट? अब आप देखें कि अगर हम 24 को प्लस 24 और 1 को प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास -11 नहीं आता, सो विल रिजेक्ट दिस पेयर. और 2 और 12 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 या फिर 14 आता है, सो विल ऑल्सो रिजेक्ट दिस पेयर. 4 और 10 को भी हम लोग प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 नहीं आ रहा. बट 3 और 8 को अगर हम इफ वी राइट इट लाइक दिस -3 -8 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -11, राइट? सो विल पिक दिस पेयर एंड राइट इट लाइक दिस 4z स्क्वायर -3 एंड -8. मिडल टर्म आपके पास -0 -8 में ब्रेक होगी और वेरिएबल z है तो इट मींस विल पुट z विद दीज नंबर्स. और आपके पास अब कॉमन लेने की बारी है तो आप कैसे लेंगे? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इट्स ओनली z. तो एंड यू आर लेफ्ट विद 4z -3. ओके, अगर आपके पास फर्स्ट पेयर के साथ नेगेटिव साइन है सो यू आर गोइंग टू टेक द नेगेटिव साइन कॉमन. ओके, और अगर आपने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है तो इट मींस जो आपके पास अंदर वाला साइन होगा दैट विल आल्सो चेंज, सो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव वन. अब हम नंबर्स की बात कर लेते हैं तो 8 और 6 में हमारे पास क्या कॉमन है? ये बोथ आर डिविजिबल बाय 2, राइट? सो 2 कॉमन ले लेंगे एंड यू आर लेफ्ट विद 4z ओवर हियर और यहाँ पे 3. नाउ सी बोथ आर सेम, सो टेक इट इज कॉमन और इसको आप वन टाइम लिखेंगे और इन दोनों को भी कंबाइन कर देंगे एंड यू आर लेफ्ट योर फाइनल आंसर इज 4z -3 into z -2, right? This is how you're going to solve these type of the question. Okay, so factorize all the rest of the algebraic expression और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है ask question. Okay, so this was your exercise 4.1 of unit number 4. Okay, practice well. Take care.